Good afternoon, everyone. In the last video, we have discussed about the dangers of wildlife trade. Let us recapitulate the word wildlife trade. क्या होता है wildlife trade? When the animals are being killed because of their body parts are used by the human, then it is known as वाइल्ड ट्रेड. दैट इम्प्लाइज एनिमल्स को मार के जब बॉडी पार्ट्स को यूज़ किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग में. जब उसे यूज़ करते हैं तो हम उसे बोलते हैं वाइल्ड लाइफ ट्रेडिंग. it implies wildlife is in danger. Why wildlife is in danger? Because of two reasons. The first one is illegal hunting and poaching. यानी illegal hunting अगर हम कर रहे हैं, किसी एनिमल को हम हंट करके उसको बनाकर खाना खा रहे हैं. द पोचिंग मीन्स कि अगर हमने उस एनिमल हंट जिसको हमने किया है उसको हम पानी में कुक करके और उसे एज अ फूड वी आर यूजिंग इट, देन इट इज़ नोन एज पोचिंग. एंड द सेकेंड रीज़न इज़ यूज ऑफ बॉडी पार्ट्स ऑफ वेरियस एनिमल्स फॉर trading. As we have discussed, the animal tusk, elephant tusk is used for making the jewelries. North and South American bears are, gallbladders are used for making medicine. Horns of rhinoceros are used for making medicine, and mountain goat hair is used for the wool, pashmina and etc. That all we have discussed कि ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं. So for the protection of wildlife, Government of India enacted the act that is known as Wildlife Protection Act. The Wildlife Protection Act, this act was passed by the Parliament of India in 1972 to protect the Indians' wildlife. As we have discussed in the forest chapter, that the Forest Conservation Act was enacted by the Indian Parliament in which year? In 1980. In the same way, this Wildlife Protection Act is just for the protection of wildlife, and that was act passed by the Indian Parliament in 1972. What Wildlife Protection Act says, it provides the protection of wild animals, birds as well as plants also. बिकॉज़ हमारे पास जो प्रोटेक्शन होती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनिमल्स के लिए ही हमें प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है. बर्ड्स भी हमारे पास डेंजर में है, एज वेल एज प्लांट्स आर ऑल्सो इन द डेंजर सिचुएशन. सो उसके लिए ये प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो स्टार्ट किया गया था ताकि उन सबको प्रोटेक्शन मिल सके, जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं, जितने भी बर्ड्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं. बट उन्होंने वहाँ पर एक वाइल्ड लाइफ वर्ड यूज़ किया है. इट मीन्स कि वाइल्ड लाइफ के अंडर सारे हमारे पास आ जाएंगे प्रोटेक्शन जिनकी हमें चाहिए. And the second point is that it extends to the whole India except the state Jammu and Kashmir who has its own wildlife act. ये जो एक्ट हमारे पास था ये सारे इंडिया के सभी स्टेट्स में वैलिड है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू कश्मीर में ये एक्ट हमारे पास वैलिड नहीं है क्योंकि उनका अपना वाइल्ड लाइफ एक्ट उन्होंने पास किया हुआ है. बाकी इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पर ये एक्ट पास हुआ है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जिसके अंडर it provides protection of wildlife animals. As I already told कि animal word उन्होंने यहाँ describe किया है. So animal include amphibians. Amphibians कौन से होते हैं? That live both on land and water. जो land में भी रहते हैं और जो पानी में भी रहते हैं, they are known as amphibians, right? और animals में include होते हैं birds, mammals and reptiles and their young ones also. They also include in the cases of birds and reptiles their eggs. सारी चीज़ें जितने भी हमारे पास मैमल्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, उनके यंग वंस हैं, एम्फीबियंस हैं, उन सबको नाम दिया है एनिमल, और उनके लिए ये प्रोटेक्शन एक्ट का नाम दिया गया द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. As you can see in this picture, amphibian, frog, bird, animal, reptiles, everyone come under the animals category, and this wildlife protection act is for all the animals. So the main objectives of wildlife protection act are as follows. मेन ऑब्जेक्टिव इन्होंने यहाँ पर 3 ही ऑब्जेक्टिव दिए हैं कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो गवर्नमेंट ने पास किया है वो क्या कहना चाहता है, उसने कौन कौन से ऐसे रूल्स जो हैं वो बनाए हैं. तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है, द फर्स्ट वन इज़ prohibition on hunting of specified wild animals and birds and plants also. यानी कि prohibition मतलब किसी भी तरह की रोक की गई है कि आप hunting नहीं कर सकते specified wild animals पे, birds पे, plants पे, किसी भी तरह पे आप prohibition लगाई गई है, hunting नहीं करनी. hunting and poaching illegal activities को बिल्कुल prohibit किया गया है. Second, setting up and management of the national park and the wildlife sanctuaries.
नए नए नेशनल पार्क्स, जब हमारे पास 1972 में ये एक्ट पास किया गया था, उस टाइम हमारे पास 5 नेशनल पार्क्स जो है वो बनाए गए थे। लेकिन अब आज की डेट में अगर हम देखें तो हमारे पास बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं, बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, बर्ड सेंचुरीज़ हैं। तो ये जो एक्ट है, इस एक्ट ने ही बोला था कि जितने हो सके सेटिंग अप ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़। थर्ड वन इज़ कंट्रोल ऑफ द ट्रेड एंड कमर्स इन द वाइल्ड लाइफ एंड वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट। जो ट्रेडिंग के हमने सारी चीज़ें पढ़ी कि एलिफेंट टस्क का यूज़ किया जा रहा है ज्वेलरीज़ में, हॉर्न जो राइनोसरस के हैं उनको यूज़ किया जा रहा है मेडिसिन में। तो ये जो ट्रेडिंग का बिजनेस स्टार्ट हुआ था, उसी टाइम पर इस चीज़ को कंट्रोल किया गया था कि वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट आप लोग यूज़ नहीं कर सकते हो। इन सब चीज़ों पे कंट्रोल। तो 3 मेन ऑब्जेक्टिव हुए। प्रोहिबिशन किया गया हंटिंग पे। मैनेजमेंट ने कहा कि नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ को बनाया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, और कंट्रोल किया जाए ट्रेडिंग सिस्टम पे। So first one is hunting animal. The act prohibit the hunting of wild animal. किसी भी तरह के hunting को प्रोहिबिट किया गया है। इस एक्ट ने कहा था आप किसी भी तरह की hunting of wild animal नहीं कर सकते। जस्ट लुक एट दिस पोस्चर। यहाँ पर कोई एक ह्यूमन बीइंग है, उसके हाथ में गन है। दैट मीन्स ही इज़ गोइंग टू हंट एन एनिमल। तो वो वहाँ पर ये पोस्टर्स लगाए जाते हैं कि हंटिंग को बैन किया गया है। पोस्टेड नो हंटिंग, नो फिशिंग, नो नथिंग, गो होम। अगर आप इस पर्पज़ से आए हैं फॉरेस्ट में हंटिंग के लिए, फिशिंग के लिए या किसी चीज़ के लिए, वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट के लिए, देन गो होम। ये ऐसा लिखा गया है वहाँ पर। Second is setting up of national park and sanctuaries. About the sanctuary and the national park we have discussed in the forest chapter. So in brief, I just want to tell you what is sanctuary. An animal sanctuary is a facility where animals are brought to live and to be protected for the rest of their life. जहाँ पर animals को लाया जाता है और उनको protect करके वहाँ पर रखा जाता है, वो sanctuaries होती हैं. So sanctuary is a reserved area in which birds and animals are protected from हंटिंग से हम उनको बचाने के लिए वहाँ पर उस सेंचुरी के अंदर सभी तरह के एनिमल्स को रख सकते हैं। तो एनिमल सेंचुरीज़, बर्ड सेंचुरीज़ होती हैं। तो सेंचुरी बेसिकली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ने कहा था कि सेंचुरीज़ को बनाया जाए, नेशनल पार्क्स को बनाया जाए। And national park is a park and used for conservation purposes. So it is a reserved land, usually that is declared by the national government, and it is also for the it is also made for the protected from the most human development and pollution. जहाँ पर भी हमारे पास human development की जाती है, वहाँ से इन चीज़ों को जो है प्रोटेक्ट किया जाता है। ऐसी जगह पर नेशनल पार्क बनाए जाते हैं जहाँ किसी तरह का पोल्यूशन ना हो, जहाँ ह्यूमन डेवलपमेंट ना हो सके। तो ऐसी जगह पर नेशनल पार्क को बनाया जाता है। नेशनल पार्क के अंदर किसी भी तरह की एक्टिविटीज़, ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड नहीं होती, जबकि सेंचुरी में लिमिटेड एक्टिविटीज़ अलाउड होती है। आप लोग देख सकते हैं वहाँ पर एनिमल्स को। लेकिन नेशनल पार्क में यू आर नॉट अलाउड टू गो एंड यू आर नॉट सपोज टू डू एनी काइंड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी देयर इन द नेशनल पार्क बिकॉज इट इज़ अंडर द नेशनल गवर्नमेंट। थर्ड इज़ कंट्रोल वाइल्ड लाइफ ट्रेडिंग। वाइल्ड लाइफ ट्रेडिंग एंड कमर्स का जो बिज़नेस स्टार्ट हुआ था कि बॉडी पार्ट्स को यूज़ करके और उनको ट्रेडिंग बेचना है हमें, और उसके लिए हमें फिर पैसे कमाने हैं। तो उस चीज़ पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ये कहा गया था कि आप किसी तरह की ट्रेडिंग बिज़नेस नहीं कर सकते। इसीलिए उन्होंने नेशनल पार्क और सेंचुरीज़ को बनाया है जिसके अंदर की कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ को अलाउड ही नहीं किया गया। कोई भी किसी भी तरह की ट्रेडिंग करने का सोच भी नहीं सकता। फोर्थ इज़ पेनल्टीज़ फॉर ट्रेडिंग एंड हंटिंग। पेनल्टीज़ का मतलब होता है कि जुर्माना लगा दिया गया था। अभी हमने बोला ना कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ने ये सारी चीज़ें बोली कि नेशनल पार्क खोलो, सेंचुरीज़ बनाओ, वाइल्ड लाइफ ट्रेडिंग को स्टॉप करो। तो इसके अलावा उन्होंने बोला कि पेनल्टीज़ लगाएंगे तो ही ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो रुकेंगे इन कामों के लिए। ट्रेडिंग या हंटिंग के लिए पेनल्टीज़ को लगाया गया था। पेनल्टीज़, अभी हमने बोला ना कि पेनल्टीज़ फॉर द ट्रेडिंग एंड हंटिंग, तो वो क्या जुर्माना हो सकता है, कौन सी पेनल्टीज़ के बारे में वो बात कर रहे हैं। इम्प्रिजनमेंट वेरिंग फ्रॉम 6 मंथ अप टू 7 ईयर्स, यानी कि 6 महीने की जेल हो सकती है या फिर 7 साल की सज़ा हो सकती है। और फाइन रेंजिंग फ्रॉम 500 अप टू नॉट लेस देन 10,000, 500 से लेकर और 10,000 से फिर नीचे नहीं होगा वो जुर्माना। डिपेंड करता है ऑन द नेचर और सीरियसनेस ऑफ द ऑफेंस।
आपने किस तरह से नेचर के ऊपर अपना किस तरह से आपने नेचर को जो है वो अपमान किया है, कमिटेड रिगार्डिंग द स्पेसिफाइड वाइल्ड लाइफ की उस पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ का किस तरह से आपने मिसयूज़ किया है, उसके अकॉर्डिंग आपकी पेनल्टी को डिसाइड किया जाएगा कि आपको जेल होगी या आपसे सिर्फ पैसों का जुर्माना लिया जाएगा. तो दैट इज़ कम अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. And the most important, very important reason for protecting the wildlife is that they form an important part of many food chains. If they are killed, many other animals in that food chain get affected. Food chain यानी कि खाना खाने की एक चेन बनाई जाती है कि ये इसको खाएगा, वो उसको खाएगा. तो ये वाइल्ड लाइफ जो होता है इसको हमें प्रोटेक्ट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर कई सारी फूड चेन्स जो होती हैं वो इम्पॉर्टेंट पार्ट होती हैं. अगर आपने किसी भी एक एनिमल को हंट किया, किसी भी एक एनिमल को अगर आपने मार दिया या उसे ट्रेडिंग में यूज़ कर दिया, तो उसकी वजह से जितने भी हमारे पास इकोसिस्टम में, जितने भी हमारे पास एनवायरनमेंट में फूड चेन होंगी, वो सारी की सारी इफेक्ट हो जाएंगी. दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो, दैट इज़ अबाउट द फूड चेन एंड फूड वेब. In this video, that is only for the Wildlife Protection Act 1972. So thank you everyone, thank you so much.